Welcome to the yet another session on the subject computer networks. The topic of today's discussion is broadcast routing. We have already talked about the adaptive and non-adaptive routing algorithms. Under adaptive routing algorithms, we have already discussed the distance vector routing, link state routing, and multicast routing. Today we will be discussing broadcast routing. So before discussing the broadcast routing, you should be clear with the term broadcast. So broadcast simply means one to all. One to all. Now, what this really means is one to all means. Now, suppose there are four nodes in your network. Now, let's assume that this machine is the source. Now, it is connected to the machine number A, B, and C. So one to all means the source will transmit the packet to all the connected machine, to all the other nodes in the network. तो यूनिकास्टिंग में क्या होता है वन टू वन, मल्टीकास्टिंग में होता है वन टू मैनी, एंड ब्रॉडकास्ट मींस वन टू ऑल. So as I told you, the broadcasting is a process of sending a message to all the nodes in a network simultaneously. Now it means from the source, the message will be sent to all other nodes in the network. Now various methods for broadcasting are flooding, multi-destination routing, and spanning tree. So these are the three methods that are used for the broadcast routing: flooding, multi-destination routing, and spanning tree. We will be discussing all these methods one by one. So let's start with the flooding. So flooding means sending the packet from source to each and every other node in the network. तो अब suppose कीजिए A is your source. Now what the A will do, it will transmit the packet to B, C, and then उसके बाद जैसे ही B को पैकेट मिलेगा उसके साथ जितने नोड्स कनेक्टेड होंगे मींस D और C, ये दोनों को ट्रांसमिट कर देगा. D के साथ कितनी नोड्स कनेक्टेड हैं, C और E. तो सभी नोड्स को, जितनी भी नोड्स कनेक्टेड होंगी एक सिंगल नोड के साथ, वो सभी को मैसेज ट्रांसमिट कर देगा. अब फ्लडिंग में बहुत ज्यादा जो है डुप्लीकेट पैकेट्स जनरेट हो जाते हैं. तो इस चीज से बचने के लिए हमने दो तीन सोल्यूशन निकाले. पहली तो चीज ये है, द रिसीवर विल नॉट ट्रांसमिट द मैसेज बैक ऑन द रिसीविंग लाइन. मींस अगर बी को ए से मैसेज मिला है, नाउ बी इज कनेक्टेड टू ए, बी इज कनेक्टेड टू ए, सी and D. Now if the B has received the message from A, it will not send back the message on the receiving line, but बाकी जो इसके साथ connected lines होंगी ये उसको transmit कर देगा like this. अब दूसरी चीज, अब देखिए ध्यान से जरा, अब जो C है that is connected with A and B directly, तो it means C से भी मैसेज मिलेगा और बी से भी मैसेज मिलेगा. तो इट मींस द सी विल रिसीव द मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम मैसेज. तो अगर एक नोड को एक ही मैसेज की मल्टीपल कॉपीज मिल रही हैं तो वो कैसे फिर हम हैंडल करेंगे? तो उसके लिए हम यूज करेंगे सीक्वेंस नंबर. The source will generate the sequence number, the unique sequence number for every message, and it will share that sequence number with all other nodes in the network. तो उसका फायदा क्या होएगा? तो जब सेम सीक्वेंस नंबर के मल्टीपल पैकेट्स रिसीव होंगे किसी नोड को, तो उसको पता चल जाएगा अगर सीक्वेंस नंबर सेम है, मैसेज मल्टीपल्स हैं, तो दे आर बेसिकली द कॉपी ऑफ द सेम मैसेज.
तो वो सिर्फ एक को ही कंसिडर करेगा, बाकी सभी को डिस्कार्ड कर देगा. So these are some techniques that are used in the flooding, though we have already discussed all these techniques in our previous lectures also. तो flooding means कि एक नोड है जो अपने साथ कनेक्टेड सभी नोड्स को मैसेज ट्रांसमिट करेगी, एक्सेप्ट जिस लाइन से उसको मैसेज रिसीव हुआ है उस पे वापस ट्रांसमिशन नहीं करेगी. हर मैसेज के लिए सीक्वेंस नंबर होगा, ताकि अगर एक नोड के पास मल्टीपल कॉपीज आ रही हैं सेम मैसेज की, तो इट शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज दैट कि मल्टीपल कॉपीज हैव बीन रिसीव्ड ऑफ द सेम मैसेज. तो वो सिर्फ एक को कंसिडर करे, बाकी सभी को डिस्कार्ड कर दे. और उसके अलावा टू मैनेज द नो मैनेज द डुप्लीकेसी, तो हम एक चीज और यूज करते हैं, दैट इज टाइम टू लिव. टाइम टू लिव इज बेसिकली द नंबर ऑफ हॉप्स अ नेटवर्क कैन विजिट. तो बेसिकली ये नंबर ऑफ हॉप्स होते हैं कि एक जो मैसेज है वो कितने नंबर ऑफ हॉप्स पे विजिट कर सकता है. अगर आप इसकी वैल्यू सेट नहीं करोगे तो एक मैसेज जो है वो इनफाइनाइट टाइम के लिए वो घूमता रहेगा इन द नेटवर्क. द सेकेंड ब्रॉडकास्टिंग टेक्निक इज मल्टी डेस्टिनेशन राउटिंग. अब फ्लडिंग की दिक्कत ये है कि जितने भी कनेक्टेड लिंक हैं, एक्सेप्ट जिससे जिस लाइन से मैसेज रिसीव हुआ है, उसके अलावा वो सभी को मैसेज ट्रांसमिट कर देती है नोड. बट द पॉइंट इज, हो सकता है कि सारी नोड्स ना हो विलिंग टू रिसीव द मैसेज. तो इस केस में हमारा बस ट्रैफिक ही जनरेट हो रहा है, नेटवर्क पे बर्डन ही इंक्रीज हो रहा है. दैट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस. तो उस चीज का सोल्यूशन है मल्टी डेस्टिनेशन राउटिंग. तो अब मल्टी डेस्टिनेशन राउटिंग में क्या होएगा? नाउ let's understand this multi destination routing from a simple example. So let's assume that we have 4 connected nodes. तो हमारे पास 4 nodes हैं like this. Let's name these nodes as A, B, C, and D. Now let's assume that A is the source. अब मल्टी डेस्टिनेशन राउटिंग में होएगा क्या? द सोर्स विल नॉट ट्रांसमिट द मैसेज टू ऑल द कनेक्टेड नोड्स. जो वो फ्लडिंग नहीं करेगा. फ्लडिंग में क्या था कि एक जो सोर्स है उसके साथ जितनी भी नोड्स कनेक्टेड होती हैं वो सभी को मैसेज भेज देता है. बट इन मल्टी डेस्टिनेशन राउटिंग द केस विल बी डिफरेंट. अब जो सोर्स पे है, जो भी फॉरवर्डिंग नोड है, उस पे अब थोड़ा सा प्रोसेसिंग बर्डन इंक्रीज हो जाएगा. वो कैसे इंक्रीज होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, ए को ये डिसाइड करना होगा कि कितनी आउटपुट लाइंस पे उसको मैसेज को ट्रांसमिट करना है. तो इट मींस, सपोज कीजिए उसने मैसेज ट्रांसमिट करना है टू बी एंड डी ओनली. तो ए जो है, अगर उसने दो ही नोड्स को मैसेज ट्रांसमिट करना, दो द ए इज कनेक्टेड टू द 3 नोड्स, बट ओनली बी एंड डी दे आर विलिंग टू रिसीव द मैसेज. तो ए ने क्या किया? मैसेज ट्रांसमिट करने से पहले प्रायरली ये डिसाइड किया कितनी नोड्स हैं हु वांट टू रिसीव द मैसेज. अब उसके बाद उसको ये डिफाइन हो गया कि नंबर ऑफ नोड्स कितनी है. उसके बाद ए को उतने ही कॉपीज मैसेज की क्रिएट करनी पड़ेंगी. सपोज कीजिए एक, अब जो 3 नोड्स में से 2 नोड्स डिसाइड हुई कि बी और डी को मैसेज ट्रांसमिट होगा, तो इट मींस नाउ बी नीड्स टू क्रिएट द 2 कॉपीज ऑफ द सेम मैसेज. तो अब सबसे पहले सोर्स ने ये डिसाइड किया कि कितनी नोड्स को ट्रांसमिशन करनी है. उसके बाद उतनी नंबर ऑफ कॉपीज जनरेट की, एंड देन इट विल ट्रांसमिट द पैकेट मैसेज ऑन द आउटपुट लाइंस. तो दिस इज कॉल्ड मल्टी डेस्टिनेशन राउटिंग. अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है. So after a sufficient number of hops, each packet will carry only one destination and can be treated as a normal packet. तो इसका मीनिंग क्या है? जैसे आप सपोज कीजिए
बी के आगे एक और नोड थी, लेट्स अज्यूम कि ई नोड थी। अब बी के पास मैसेज पहुंचा। अब बी ने डिसाइड करना है कि इस मैसेज को कितनी आउटपुट लाइंस पे ट्रांसमिट करना है, क्योंकि दो ही लाइंस हैं, ई और डी। क्योंकि अब सिर्फ ई ही है जिसको मैसेज भेजना बाकी है, तो बी क्या करेगा, सिर्फ अपनी एक आउटपुट लाइन पे मैसेज ट्रांसमिट करेगा और सिर्फ एक ही कॉपी करेगा। तो इट मींस जो पहले ए से दो मैसेज चले थे, मल्टीकास्टिंग हुई थी, बी पे जाके वो सिर्फ अब क्या बच जाएगी, यूनिकास्टिंग। सो इस तरह से जो अपना मैसेज है वो ट्रेवल करेगा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द सोर्स नीड टू डिसाइड द नंबर ऑफ कनेक्टेड लिंक्स या नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस ऑन विच इट वांट्स टू ट्रांसमिट द मैसेज। तो सबसे पहले सोर्स ये डिसाइड करेगा कि कितनी आउटपुट लाइंस पे उसको मैसेज ट्रांसमिट करना है। जैसे in case of our example, A is connected with B, C and D, but only B and D, इन दोनों को ही A ने मैसेज ट्रांसमिट करना है। तो नंबर ऑफ नोड्स कितनी हो गई, 2 आउट ऑफ 3। और जितनी नंबर ऑफ नोड्स हो गई उतनी नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ द मैसेज, क्योंकि दो नोड्स थी तो ए के पास जो मैसेज एम था उसने उसकी दो कॉपीज क्रिएट कर ली, एक बी के लिए और एक डी के लिए। तो ए ने अब सेम मैसेज की दो कॉपीज ट्रांसमिट करी, एक बी के पास चली गई, दूसरी चली गई डी के पास। अब वो मैसेज पहुंचा बी और डी के पास। अब बी डी ने सबसे पहले डिसाइड करना है कि अब उसकी आउटपुट लाइंस हैं बी और सी, उसको उसको कौन कौन सी लाइन पे ट्रांसमिट करना है। क्योंकि ए इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद सी, सी ने उसको नहीं भेजा, तो डी विल नॉट ट्रांसमिट द मैसेज टू द सी। बी के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो डी विल नॉट सेंड टू द बी, तो वो यहां पे आके मैसेज को डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि डेस्टिनेशन जो ई है दैट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द डी। तो अब वही मैसेज बी के पास गया। अब बी ने डिसाइड करना है कि उसको कौन सी आउटपुट लाइन पे, कितनी नंबर ऑफ आउटपुट लाइंस पे वो मैसेज ट्रांसमिट करना है। तो उसके पास दो ही लाइंस थी, ए डी और ई, तीन लाइंस हैं। डी को ऑलरेडी ए भेज चुका है, ए से बी ने रिसीव किया है, और अब ई को ट्रांसमिट करना है। सो ओनली वन आउटपुट लाइन। तो अब पहले जो मैसेज मल्टीकास्ट हुआ था बी पे जाके वो सिर्फ यूनिकास्ट होगा। सो दिस इज हाउ मल्टी डेस्टिनेशन राउटिंग वर्क्स। और जो हमारा तीसरा और लास्ट ब्रॉडकास्ट मेथड है दैट इज कॉल्ड स्पैनिंग ट्री। सो स्पैनिंग ट्री इज बेसिकली a subset of subnet that includes all the routers but contains no loops. So अब ये लूप से कैसे बचा जाए, उसको उससे बचने के लिए द राउटर नीड्स टू नो विच ऑफ इट्स लाइंस बिलोंग्स टू द स्पैनिंग ट्री and it can copy an incoming broadcast packet onto all the spanning tree lines except the one it arrived on. So the advantage of this method is that this method makes the best use of the bandwidth. अब स्पैनिंग ट्री को अंडरस्टैंड करने से पहले सबसेट ऑफ सबनेट दैट कंटेन्स नो लूप्स, इसका मीनिंग क्या है। ब्रॉडकास्ट की एक बड़ी दिक्कत है, वो दिक्कत क्या है वो देख लो एक बार जरा। तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पे चार नोड्स हैं, ए बी सी और डी। अब ए इज कनेक्टेड टू ऑल अदर थ्री नोड्स। तो ए सपोज कीजिए सोर्स है, इसने मैसेज ट्रांसमिट किया बी को, ये थी डायरेक्शन, डी को सेंड किया, ये थी डायरेक्शन, और सी को ट्रांसमिट किया, ये थी डायरेक्शन। अब होगा क्या, सी मैसेज को रिसीव करेगा, वो ए को तो ट्रांसमिट वापस नहीं करेगा क्योंकि उस लाइन से उसको मैसेज रिसीव हुआ है, तो वो किसको ट्रांसमिट करेगा, डी को। अब डी क्या करेगा, उसको जो ए से मैसेज रिसीव हुआ है वो बी को ट्रांसमिट कर देगा और सी को ट्रांसमिट कर देगा।
लेकिन ए को नहीं करेगा क्योंकि ए से उसको रिसीव हुआ है। अब क्या हुआ, डी ने बी को मैसेज भेज दिया, बी क्या करेगा, जो ए से मैसेज आया है उसको तो वापस नहीं भेजेगा, ठीक है जी, लेकिन ए से जो मैसेज आया है वो डी को भेज देगा और डी से जो मैसेज आया है वो ए को भेज देगा। इसी तरह से सी जो ए है, अब वही मैसेज जो उसने पहले ट्रांसमिट किया था वो उसके पास फिर से पहुंच गया, अब वो उसको सिर्फ बी को नहीं भेजेगा, डी और सी को फिर भेज देगा। सी वही मैसेज ए को वापस नहीं भेजेगा लेकिन डी को भेज देगा, डी वही मैसेज वापस सी को तो नहीं भेजेगा लेकिन ए और बी को भेज देगा। तो आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है, द सेम मैसेज इज ट्रेवलिंग इन द नेटवर्क अगेन एंड अगेन, दिस क्रिएट्स द ब्रॉडकास्ट लूप। तो अब ये क्या हो गया, ब्रॉडकास्ट लूप क्रिएट हो गई, क्योंकि लूप में क्या होता है, वो मैसेज जो घूम के है वापस वही पूरे नेटवर्क में घूमे जा रहा है, बट द मैसेज इज सेम। अब इस चीज को सॉल्व करने के लिए स्पैनिंग ट्री ने एक नया मेथड खोज निकाला। उसने कहा जब ऐसा नेटवर्क चल रहा है तो हमें क्या करने की जरूरत है, वो देख लेते हैं एक बार। तो स्पैनिंग ट्री ये कहता है कि सपोज कीजिए ए बी सी और डी ये नेटवर्क है और ये मेरा कनेक्टेड लिंक्स हैं। तो अब स्पैनिंग ट्री क्या कहता है, अ सबसेट ऑफ सबनेट दैट इंक्लूड्स नो लूप्स। तो अगर ए सोर्स है तो स्पैनिंग ट्री क्या करेगा, वो कुछ ऐसी चीज करेगा कि पूरे नेटवर्क में लूप क्रिएट ना हो। तो लूप ना क्रिएट हो उसके लिए वो क्या करेगा, वो एक लिंक को डिसेबल कर देगा। तो इट मींस आप देखिए ए से सी पे गया, अब नेटवर्क कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, ए सी डी और बी। अब ये जो लिंक है दो उसने स्पैनिंग ट्री ने डिसेबल कर दिए ताकि लूप ना बने, और इससे लूप बनेगी भी नहीं। अब मान लीजिए बी था ट्रांसमिट, उसने बी ने ट्रांसमिट किया डी को, डी ने ट्रांसमिट किया सी को, क्योंकि डी वापस बी को तो करेगा नहीं और सी डी को नहीं करेगा। सी ने ट्रांसमिट किया ए को, तो ए वापस सी को तो ट्रांसमिट करेगा नहीं, तो मैसेज सभी को मिल भी गया लेकिन ए के आगे बी कनेक्टेड नहीं है, तो यहां पे आके वो लूप खत्म हो जाएगी। तो एक मैसेज सभी के पास पहुंच भी गया लेकिन मैसेज ने लूप भी क्रिएट नहीं करी। तो स्पैनिंग ट्री क्या करता है, वो पूरे सबनेट में से ऐसा सबसेट क्रिएट करता है कि उसमें लूप ना बने। और वो ये चीज करता कैसे है, बाय डिसेबलिंग सम लिंक्स, वो कुछ लिंक्स को डिसेबल कर देता है और उन लिंक को डिसेबल करने से लूप क्रिएट नहीं होती। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग द स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। आज हमने डिस्कस करा ब्रॉडकास्ट राउटिंग। सबसे पहले हमने डिस्कस किया व्हाट इज ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग मींस वन टू ऑल, और ब्रॉडकास्ट राउटिंग के हमारे पास तीन मेथड्स हैं, फ्लडिंग, मल्टी डेस्टिनेशन राउटिंग एंड स्पैनिंग ट्री। फिर हमने फ्लडिंग को डिस्कस किया डिटेल में, देन वी डिस्कस द मल्टी डेस्टिनेशन राउटिंग, एंड इन द लास्ट वी डिस्कस द स्पैनिंग ट्री method of the broadcast routing. I hope all the concepts are clear to you. Thank you very much for joining today. See you in the next session.